Students, so previous class giving homework exercise 3.2 and I hope you completed. Here question number 7th already discussed and same example also discussed. आप ये complete कर लोगे. So next topic, trigonometric function of sum and difference of two angles. Trigonometric function of sum and difference of two angles. Trigonometric function of sum and difference of sum and difference of two angles. Sum and difference of two angles. So suppose two angles be A and B. बुक में एंगल क्या सपोज किया है, एक्स वाई और ए एंड बी. एक्स वाई, तो हम भी एंगल सपोज कर रहे हैं एक्स वाई. फ्रेंड्स, so suppose two angle B XY. So here we suppose a x axis and this one is a y axis, or we draw angle. This is a one angle and this is draw another angle. There are two angles. This point suppose O and this point suppose A, and we draw perpendicular from A to this line. Then again we draw perpendicular from this point to this axis. So this point suppose this is x axis, ये point suppose B and this point suppose C. This one is perpendicular. So here two angles. One angle is, थोड़ा फिगर और थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं. ये फिगर हो गया, स्मॉल फिगर हो गया, थोड़ा लार्ज बना रहे हैं फिगर. Suppose this is a x axis. This is one angle, this is another angle. Point suppose O, X, this point suppose here A. We draw perpendicular from A to this line. Suppose this point is B, this one is perpendicular. And from B perpendicular to this X axis, this point suppose C. And suppose angle BOC, this angle suppose X and this angle suppose Y. So there are two angles. First angle BOC, angle X, and other angle AOB, angle is Y. Now we draw perpendicular from A to this axis also. A to this axis, यहाँ से ड्रॉ किए परपेंडिकुलर. दिस पॉइंट सपोज D, यह पॉइंट सपोज कर लिए D. नाउ फ्रॉम B is perpendicular to this line and this point suppose E. This also a perpendicular. So all are perpendicular. आप समझ रहे हो? We draw all are perpendicular. हमें क्या फाइंड करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम and difference of two angle. So first find sum. Sum, that is x plus y. Sum means x plus y. Since this angle be x, so this angle also x. Both are alternate interior angle because these two lines are parallel. Both are parallel. So alternate interior angles are equal. and this whole angle is 90 degree.
बिकॉज ए बी इज परपेंडिकुलर ओ बी। यार क्या क्या परपेंडिकुलर हैं? यार ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू ओ एक्स एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए डी। इतने लाइन्स परपेंडिकुलर हैं। तो ए बी परपेंडिकुलर, so this whole angle is 90. So this angle be 90 minus x, that is angle ए बी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि यह एंगल x है, होल एंगल 90 एंड दिस एंगल भी 90। So in triangle ABE, this angle 90, second angle 90 minus x, so third angle be x, यह एंगल x होगा। इन ट्रायंगल ABE देख रहे हो, वन एंगल 90, सेकेंड एंगल 90 माइनस x, so third angle is x. Now in triangle AOD, ट्रायंगल AOD देख रहे हो, इन ट्रायंगल AOD ये एंगल समझ में आ गया? यहाँ से आप रिपीट कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABE टू एंगल, वन एंगल इज 90 एंड सेकेंड एंगल 90 माइनस x, थर्ड एंगल इज A इज इक्वल टू 180 डिग्री। Sum of all angle 180. This 90 plus 90 180 cancel. Minus x taking right side. So angle A is x. Angle A की वैल्यू x आ गया। Now in triangle AOD, AOD में चल रहे हैं। In triangle AOD, in triangle AOD हमें फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल। देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं साइन और सम के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल AOD साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई लिख रहे हैं। एंगल इज x प्लस वाई एंड सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h. So here what is perpendicular? For this angle AD is the perpendicular. So AD and what is hypotenuse? OA. So AD by OA. Now this AD आप देख रहे हो, AD can written AE plus DE. AD can written AE plus DE. ठीक है, AD कैन रिटन AE प्लस DE डिवाइडेड बाई OA एंड दिस DE इज इक्वल टू BC. DE इज इक्वल टू BC बिकॉज BCDE इज a rectangle. So this is equal to AE and DE के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? BC by OA since DE is equal to BC. ठीक है, now divide separately, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाई OA प्लस BC बाई OA, दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग। नाउ AE, आप AE देख रहे हो, AE साइड ये AE है। AE साइड से रिलेटेड कौन से राइट ट्रायंगल हैं? आप देखो फिगर में, फाइंड ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज AE। तो AE से ट्रायंगल क्या होगा? AEB। AEB इज राइट एंगल। समझ में आ रहा है यार? AE साइड से रिलेटेड ट्रायंगल क्या है? AEB। और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है?
ट्रायंगल ए ई बी का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। सो डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए बी से डिवाइड कर रहे हैं। ए बी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप ए ई इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ई को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी। ए को हम भी डिवाइड कर दिए, ए ई को हम डिवाइड किए बी से, और इनटू जब ए बी से डिवाइड किए हो तो ए बी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ए बी से मल्टीप्लाई भी कर दिए, और डिवाइडेड बाई क्या है, ओ ए। सही है, ए बी से डिवाइड, ए बी से मल्टीप्लाई किए, प्लस बी सी से कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल बताइए कौन सा बन रहा है, बी सी से राइट एंगल ट्रायंगल बी सी ओ, बी सी साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बी सी ओ, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। तो इसे हमें क्या करना है, ओ बी से डिवाइड करना है। सो प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ओ बी, ये डिवाइड किए हो तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, और बाई क्या है, ओ ए। ये डिवाइड किए मल्टीप्लाई भी किए, यहाँ भी डिवाइड किए मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इज इक्वल टू, अब ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ए बी। आप ट्रायंगल ए ई बी देख रहे हो, इस एंगल x के लिए, या एंगल x के लिए साइड ए ई क्या होगा, एंगल x के लिए साइड ए ई क्या होगा, बेस, या बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आप जो एंगल लेकर के चलते हो उसके अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। फॉर एंगल x b इज द परपेंडिकुलर, तो ए ई क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो इधर क्या है, ए ई बाई ए बी, दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x, because cos x इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट वैल्यू ए बी बाई ओ ए बी बाई ओ ए। इन ट्रायंगल ए बी ओ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ओ देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ओ ट्रायंगल, वाई एंगल के लिए ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन वाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन वाई, प्लस बी सी बाई ओ बी। बी सी देखिए कहाँ पे है, ये बी सी बाई ओ बी, दैट इज ट्रायंगल बी सी ओ। फॉर एंगल एक्स बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल क्या है, एक्स, दैट इज साइन एक्स। सो बी सी बाई ओ बी इज साइन एक्स इंटू ओ बी बाई ओ ए, ओ बी, दिस इज ओ बी बाई ओ ए, दैट इज ट्रायंगल ए बी ओ। यह जो ओ बी बाई ओ ए हैं तो किस ट्रायंगल में, ए बी ओ। तो ओ बी, दिस ओ बी दैट इज वाई एंगल के लिए ओ बी क्या हो जाएगा, बेस। वाई एंगल के लिए ए बी होगा परपेंडिकुलर, ओ बी क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेनस क्या है, ओ ए, दैट इज ईयर ओ बी, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। सो कॉस वाई, दैट इज दिस वैल्यू इज कॉस y. So this is the formula of sin x plus y, or this can also written sin x plus y is equal to, first write this term, that is sin x into cos y, then write this term
plus cos x into sin y. This is the formula of sin x plus y. Similarly, find cos x plus y. cos x plus y, आप इसी ट्रायंगल से cos x plus y फाइंड कर सकते हो. So in same triangle AOD, in triangle right angle triangle AOD, अब cos के फाइंड कर रहे हैं. So cos x plus y is equal to base by hypotenuse, and what is the base? Base is OD and hypotenuse OA. So OD by OA, and this OD को हम क्या लिखेंगे? OC minus CD. OD can written OC minus CD. So this OD can written OC minus CD by OA. ठीक है, OD कैसे लिख देंगे? OC माइनस CD इज इक्वल टू OD. इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दें. सो दिस इज इक्वल टू OC बाई OA माइनस CD बाई OA. दोनों को डिवाइड कर दिए अलग अलग. दिस OC बाई OA माइनस CD, ये आप CD देख रहे हो, यह CD किसके इक्वल होगा? BE. CD इज इक्वल टू B होगा. फिगर में आप देख रहे हो CD इज इक्वल टू BE. यह CD के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? BE बाई OA, सिंस CD इज इक्वल टू B. बोथ आर इक्वल. नाउ चेक दैट first side lie in which right angle triangle? किस ट्रायंगल में साइड OC लाई कर रहा है? साइड OC देख रहे हो, इस OC साइड से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ये OC से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OCB. OCB इज राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है? OB. तो इसे हम क्या करेंगे? OB से इसे डिवाइड करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन रिटर्न OC बाई OB, देन मल्टीप्लाई बाई OB एंड बाई OA. ठीक है, OB से मल्टीप्लाई, OB से डिवाइड, OB से मल्टीप्लाई किए. दैट इज हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. जिस ट्रायंगल में यह B लाई कर रहा है, जिस राइट ट्रायंगल में, उस राइट एंगल ट्रायंगल को किससे डिवाइड करना है? हाइपोटेनस से डिवाइड करना है. तो BE चेक कीजिए, BE से कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल BEA, दैट इज ABE. इन ABE इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. उसका वन साइड क्या है? B. इसका हाइपोटेनस क्या है? AB. तो OB को हम या B को हम किससे डिवाइड करेंगे? AB हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे. सो दिस कैन रिटर्न BE बाई AB इंटू मल्टीप्लाई बाई AB बाई OA. तो AB से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए. अब इसका वैल्यू लिख दें, पुट करो इसका वैल्यू. सो cos x प्लस y इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है? OC बाई OB. वाट इज OC देख लो, ये OC बाई OB, दैट इज ट्रायंगल BCO. ये x एंगल के लिए क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस. दिस इज बेस बाई हाइपोटेनस. सो cos x, एंगल इज x, दैट इज cos x. सो राइट cos x इंटू OB बाई OA. देखिए फिगर कौन से ट्रायंगल में है? OB बाई OA. देख रहे हैं ट्रायंगल? दिस OB ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई OB बाई OA. विच ट्रायंगल? विच एंगल? दैट इज एंगल ट्रायंगल AOB. इस y एंगल के लिए OB क्या हो गया? बेस,
और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई। सो पुट वैल्यू कॉस वाई, देन माइनस बी ई बाई ए बी, दिस बी बाई ए बी, ये बी किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ए बी ई, तो बी इस एंगल x के लिए b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन x, एंगल यहाँ पे x है, इस x एंगल के लिए b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सो b बाई ए बी इज साइन x, एंड नेक्स्ट चेक दैट ए बी बाई ओ ए बी, दिस ए बी बाई ओ ए, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, देख रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, तो ए बी या y के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो इस y एंगल के लिए ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई ओ ए यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज, सो साइन y, सो इनटू साइन y, so this is the formula of cos x plus y. This is formula number second. फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट कर दोगे, sin x प्लस वाई नंबर फॉर्मूला फर्स्ट कर नोट कर देंगे। इसके पहले बताएं sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई फॉर्मूला क्या बताएं, sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, इसको नोट कर लोगे, ये पहले बता चुके हैं, ये फर्स्ट है, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है। टू फॉर्मूला, यह टू इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इससे हम फाइंड कर रहे हैं tan x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, नाउ फाइंड tan x प्लस वाई। So for tan x plus y, divide first by second, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज sin x प्लस वाई बाई cos x प्लस वाई। ऐसे फाइंड करना आपको tan के फॉर्मूला ना, तो आप डायरेक्ट tan लेकर के चलिए, सिंस tan x प्लस वाई, दिस कैन रिटन साइन एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिए, सो पुट वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई, ये पुट कर दें, सो साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस वाई। आप साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, तो दोनों एंगल साइन के साथ भी होंगे और दोनों एंगल कॉस के साथ भी होगा। यदि एक्स एंगल साइन के साथ हैं तो वाई एंगल कॉस के साथ होगा, तो इसमें लिखा है साइन एक्स, तो वाई होगा कॉस के साथ, और यहाँ चेंज कर दें कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई में क्या करना है, दोनों एंगल के साथ पहले कॉस लिख देना है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस दोनों एंगल के साथ साइन लिखेंगे, और ये साइन में क्या देख रहे हो, यहाँ प्लस है तो साइन यहाँ भी प्लस है, बट कॉस में क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, कॉस में हो रहा है माइनस, इसको आप याद रखोगे। सो पुट वैल्यू कॉस एक्स प्लस वाई, that is cos x into cos y minus sin x into sin y. Now convert it into tan form, जो कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो tan का, tan x plus y का लिख रहे हो फॉर्मूला, so convert all into tan form, तो tan form, so divided by cos x into cos y, tan that is डिनोमिनेटर में क्या होता है, cos x cos y, सो डिवाइडेड बाई cos x एंड cos y, ऑल द टर्म्स सबको डिवाइड कर दीजिए, सो sin x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होल डिवाइडेड बाई, इसमें अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। सबको डिवाइड कर दिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। नाउ सिंप्लीफाई इट, सो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस cos y cancel, so sin x by cos x, that is tan x. Here cos x cancel, sin y by cos y, that is tan y divided by 1 minus sin x by cos x, that is tan x, and sin y by cos y, that is tan y. So this is the formula of tan x plus y. This is third formula. ये मेन 3 फार्मूला हैं, इसको आप याद रखोगे। इसी 3 फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके।